السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں، محترم قارئین حضرات۔ آج اس ویڈیو میں ہم اجمیر شریف کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ میں یہ جانیں گے کہ اجمیر جو کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مندر تھا، وہ درویش کی درگاہ کیسے بن گیا۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ چھڑ جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ صرف ایک ہی رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن ان مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنی مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت قریب تھا، لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں، تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کر دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ لوگ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگا لو۔ آخر آپ رحمت اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے۔ آخرکار انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی کامل جادوگر ہے، کسی کا خیال تھا
कि वो कोई भगवान का अवतार है। बात राजा पृथ्वी तक जा पहुंच गई कि एक मुसाफिर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना ही जादू किया करते हैं। जाओ जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े होंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊंटों को उठाया तो पहली ही बार में ऊंट खड़े हो गए। हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि ये जो फकीर आए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं, कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं, ये तो महज पत्थर है, इसलिए इन्हें यहां से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वी ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ मुंह डाल कर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सा कोई कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे, वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे। जाओ एक मुश्किल पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, चलो हम मुश्किज़ा भर लेते हैं। हिंदू इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से ना छुए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मुश्किज़ा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो मुश्किज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मुश्किज़ा पानी से बाहर आया, अनास सागर का सारा पानी खुश्क हो गया और झील की तह में खुश्क रेत उड़ने लगी। गोया सारा अनास सागर मुश्किज़े में बंद हो गया। अनास सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गलियों मोहल्लों में चीखो पुकार और आहो बका शुरू हो गई। वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की गठरियां लाते थे और अनास सागर में गौसल करके इनसे छुटकारा पा लेते थे, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अनास सागर को खुश कर दिया है। राजा पृथ्वी इस नई सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामल फकीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो थी अनास सागर के दम से। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अनास सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म को सख्त धचका लगेगा और यही तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया गया कि फकीर से मुज़ाकरात किए जाएं कि आखिर वो चाहता क्या है। अगर उसके मुतालबात माकूल हों तो तस्लीम कर लिए जाएं या फिर सब मर्द और औरतें बच्चे जाकर फकीर की मिन्नत समाजत करें कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम अपने गुनाहों का बोझ उठाए किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे। ये तजवीज ज्यादा आसान थी, लिहाजा तमाम लोग
बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुब, मुश्किज़ा वापस तालाब में डालाओ। जो ही मुश्किज़ा तालाब में उल्टाया गया, अना सागर किनारों तक उछल आया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू मौरखीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गम और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ और वो सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन मस्जिद इधर रह गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजरा रखकर जल्द अज जल्द उन्हें शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने राजा पृथ्वी को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी अख्तियार किए रखी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूं। इस निगाह और लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मनाजरा देखने आए थे सब हैरान हुए और रामदेव जो बाबा को शिकस्त देने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं कि हजरत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह वो वाहिद बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान किया। सदियां बीत गईं मगर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार आज भी अजमेर शरीफ राजस्थान इंडिया में मौजूद है, जहां बिला तफरीक रंगो नस्ल और मजहब के अकीदतमंदों का जम गफीर हाजिरी देने पहुंच जाता है। मेरे मोहतरम अजीजों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।